Hello, my name is Prachi Gupta. I am assistant professor in IMT College of Law, Greater Noida. And today my topic is human rights and media. So, in discussing this topic, here's the point we are going to discuss is what is human right, what is media, and essential features of human rights and media, evolution of human rights, relationship between human rights and media, how media protecting human rights issues in India, and at last the conclusion. So let's start the topic. So now, what is human rights? There are international law, also in international law as well as Indian law. So definition of human right is providing in Indian law as well as international law. But what is human right? Let's discuss. Human rights are inherent right to all human beings, regardless of nationality, residence, sex, sexual orientation, gender, identity, national, meaning by any class or religion, it is immaterial. So human rights, एक्चुअली ह्यूमन राइट्स हम लोगों को इसलिए मिले हैं क्योंकि हम ह्यूमन हैं. अगर हम इस बाय बर्थ ह्यूमन हैं तो हमें सभी ह्यूमन राइट्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं. इट इज इनहेरेंट इन इट्स नेचर. हम लोग कोई एनिमल्स नहीं है. सो अगर हम लोग ह्यूमन हैं तो बाय बर्थ, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, इस वजह से हमें कुछ राइट दिए जाने चाहिए जो हमारे बेसिक राइट्स हैं. यही ह्यूमन राइट्स हैं. इनको regardless of any kind of religious background, ethnic origin, color, इसकी वजह से हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. हमें ह्यूमन राइट्स हैं तो हमें ह्यूमन राइट्स मिल जाएंगे. क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन हैं, सिर्फ इस वजह से. ठीक है. सो दिस इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. ठीक है. जैसे कि ह्यूमन राइट हमारे इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में भी इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है. ठीक है. हमारे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, it was incorporated in 1993 by Indian government. So it also defined human rights. What is human rights? Section 2D of Protection of Human Rights Act 1993 defines human rights. According to this section, a human rights means right relating to liberty, life, equality, dignity of the individual, guaranteed by constitution or embodied in the international covenant and enforceable by the courts in India. इसका मतलब क्या हुआ कि 3 राइट, खासकर लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये ह्यूमन के बेसिक राइट हैं. और हमारे एक्ट में, इंडियन एक्ट जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में, इन चीजों को गारंटी करा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, एज वेल एज इंटरनेशनल कॉवेनेंट जो बनाए गए हैं उनमें भी हमें ये राइट्स दिए गए हैं. और साथ ही साथ जब तक के इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है किसी राइट्स का, तब तक के उस राइट्स का कोई महत्व नहीं है. सो इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स इन द इंडिया. इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी राइट के लिए. तो उसके लिए हम लोग आर्टिकल 32 में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट. ओके. बट एक बात जो है कि इस सेक्शन में, हमारे एक्ट में सिर्फ 3 ही राइट की बात की गई है, जबकि हमें सिर्फ ह्यूमन राइट्स, इट्स अ वास्ट कॉन्सेप्ट. सिर्फ कुछ राइट देने से काम नहीं बनता है. तो हम ऐसा प्रिज्यूम करते हैं कि हमें जो ह्यूमन होने के नाते जो भी बेसिक राइट्स हैं वो सब इसी में इंक्लूडेड हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? मीडिया क्या है? अच्छा, मीडिया, द टर्म मीडिया विच is plural form of medium
refer to communication channels through which we disseminate news, music, movie, education, promotional message, or other data. It includes physical and online newspapers, magazines, television, radio, billboards, telephone, and internet. It means it includes all form of media. Okay. And by this, we can communicate in society because it refers to all means of communication, everything ranging from phone call to every news on television, social media. Okay. Okay. And next title is nature and characteristics of HR. मतलब ह्यूमन राइट्स के क्या नेचर है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो एक बेसिक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि these are very these are universal. Human rights are universal, whereas fundamental rights of Indian Constitution, which are provided in Part 3 of the Constitution, it is only for Indian as well as for other citizen also. But the nature of human rights are universal. ठीक है? The rights do not discriminate against the people. These rights are available to all people equally without taking note to taking note to varied differences among the people. Another characteristics is absolute. These rights are absolute. Each right has its limitation, which is imperative to public health, order, morality. These are not inbreedable. Inalienable, that means कि ये किसी एक व्यक्ति को अगर कोई राइट मिला है तो उसे वो छोड़ नहीं सकता है. वो राइट उसको अगर मिला है, अगर हमें राइट टू लाइफ है तो हमें जीने का अधिकार है. हम अपने राइट टू लाइफ को छोड़ नहीं सकते हैं, उसको सरेंडर नहीं कर सकते हैं. सो दीज राइट आर इनएलिएबल राइट्स. Also, these rights are interdependent. Human rights are interdependent upon each other, like right to life. If we have right to life, we also want food, shelter. So these are interdependent. One right is dependent upon other right. Okay. These rights are dynamic. These rights are not static. These are dynamic. Irrevocable. The human rights are irrevocable. They cannot be taken away by anybody. No power or authority can take away these basic rights of a person, connected with the dignity. Yes, these rights are deeply connected with the dignity of the individual in a society. These are similar to moral rights. Conscience is regarded important. Human rights are inherent. These rights cannot be brought or borrowed from somewhere or someone. These rights are naturally existing rights. Okay. Let's start the evolution of human rights. From where it came, how is development so far as developing in recent time, how it came in present status. So there are steps. हमारे रिलीजन में भी ह्यूमन राइट्स के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र मिल ही जाता है. डिफरेंट रिलीजन में ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया है कि हमें कम से कम जस्टिस, ट्रूथ और पीस इसकी बात की गई है. पर रिटन डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला अगर ह्यूमन राइट्स का एविडेंस या फिर एवोल्यूशन हुआ है वो है मैग्ना कार्टा 1215 में ब्रिटेन में. तो मैग्ना कार्टा इज अ चार्टर ऑफ राइट इशूड बाय किंग जॉन ऑफ England in 1215 under the pressure from the barons. This is the first written document relating to fundamental rights of citizen. Okay. And after that, Petition of Rights 1628. The next recorded milestone in development of human rights was Petition of Rights, produced in 1628 by English Parliament and sent to the Charles I as the Statement of Civil Liberties. And after that, English Bills of Rights.
1689, Bill of Rights, formally an act declaring the rights and liberties of subject and settling the succession of the crown, one of the basic instrument of the British Constitution. The result of the long 17th century struggle between the Stuart kings and the English people and the Parliament. It incorporated the provision of the Declaration of Right, acceptance of which had been the condition upon which the throne had held to have been vacated by James II. Okay, basically अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो मैग्ना कार्टा सबसे पहले आता है ब्रिटेन से ही, उसके बाद पेटिशन ऑफ राइट्स थे, देन बिल ऑफ राइट्स. इट वाज अ स्ट्रगल स्टेप बाय स्टेप अगेंस्ट द monarchy of the Britain, so that certain rights, certain bundle of rights are to guarantee the citizen of Britain people, Britain public actually. वो बेसिकली जो राइट्स थे ब्रिटिश एम्पायर के ही खिलाफ वहां के लोगों ने एक मांग किया था, जो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग राइट्स की गारंटी जो है वहां पे ब्रिटेन को मिली थी, ब्रिटेन के लोगों को मिली थी इसी सीरीज में. अच्छा हाँ, ब्रिटेन में जो राइट्स मिल रहे थे लोगों को, एक जनरल पब्लिक को ही मिल रहे थे, तो इसी वजह से अलग अलग पार्ट ऑफ वर्ड्स में भी कुछ ह्यूमन राइट्स, कुछ बेसिक राइट्स होने की मांग उठने लगी थी ब्रिटेन को देखते हुए. तो इसी क्रम में जैसे कि पता है कि ब्रिटेन कॉलोनी यूएस में भी थी, तो वहां पे भी एक पार्ट में वर्जीनिया में इसी से इंस्पायर होके वर्जीनिया डिक्लेरेशन 1776 आया था. वर्जीनियन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन अडॉप्टेड in June 12, 1776 by the Constitutional Convention of the Colony of Virginia. It was model for Bill of Rights added to US Constitution 15 years later. So जो ब्रिटेन में हो रहा था उससे इंस्पायर होके यहाँ पे भी रेवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ था, यूएस में भी हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इसी से इंस्पायर थी. सो यहाँ पे भी अपने राइट्स के लिए, बेसिक राइट्स के लिए स्ट्रगल शुरू हो गया था. उसी क्रम में ये वर्जीनिया डिक्लेरेशन जो है आया था. और उसके बाद उसके जस्ट बाद यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776. ओके, ऑन July 4, 1776 United States Congress approved the Declaration of Independence. In primary, author Thomas Jefferson wrote the declaration as a formal explanation of why Congress had voted on July 2 to 6 declare independence from Great Britain. तो ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ ही ये सब मेनली रिवोल्ट चला था, जिसके ही परिणाम में ये सब डिक्लेरेशन स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट हुए थे, अडॉप्ट किए गए थे. More than a year after the outbreak of Indian Revolutionary War, and as a statement announcing that the 13 American colony was no longer the part of British Empire. तो 13 कॉलोनी जो है फिर ब्रिटिश एम्पायर का जो पार्ट नहीं रहने वाले थे. Congress issued the Declaration of Independence in several forms. It was initially published as a printed broadsheet that was widely distributed and read to public. Okay, next था Constitution of India, Constitution of United States of America 1787 and Bills of Rights. So अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में थोड़ा पतला है, और उसमें ये 1787 में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए के था उसमें भी कुछ राइट गारंटी किए थे, बिल्स ऑफ राइट भी थे, जो कि बाद में 10 अमेंडमेंट हुए थे यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में. तो बिल्स ऑफ राइट्स ऑफ 1791 उसी में से था, आफ्टर अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका. अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स गारंटीड किए गए, और उसके बाद उन्हीं में कुछ 4 साल, लगभग 4 साल बाद और अमेंडमेंट हुआ था. तो 10 राइट जो
बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वो और इसमें इनकॉर्पोरेटेड किए गए, और तब बिल्स ऑफ राइट्स 1791 आया एग्जिस्टेंस में। हाँ, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसी सिलसिले में जैसे कि पूरे वर्ल्ड में स्टेप वाइज स्टेप अलग अलग डिक्लेरेशन होते गए, और राइट्स जो है अलग अलग देशों ने डिमांड किया। इसी में एक फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ था, उसमें भी फ्रेंच फ्रेंच में भी रिपब्लिक आया था, तब वहां पे भी बेसिक राइट्स की बात की गई, और वहां पे भी उन्होंने अपना एक एक्ट पास किया था, और उसमें उन्होंने अपने सिटीजन्स के लिए कुछ राइट्स गारंटी किए गए थे। देन उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में आया है। सो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, ये यूनिवर्सल नेचर का है, ये सभी देशों पे अप्लीकेबल है, और इंडिया भी इसका पार्ट है, इंडिया ने भी इसे अडॉप्ट किया है। तो बाय 1948 द यूनाइटेड Nations new Human Rights Commission has captured the world's attention under the dynamic chairmanship of Roosevelt. President Franklin Roosevelt, a human rights champion in her own right, and the United States delegates to UN, the Commission set out to draft the document that became the Universal Declaration of Human Rights. Roosevelt, credited with its inspiration, referred to the declaration as International Magna Carta for all mankind. It was adopted by United Nations on December 10, 1948. So 10 दिसंबर 1948 में ये UDHR जो है अडॉप्ट किया गया था। So next title is रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड मीडिया। ह्यूमन राइट और मीडिया का क्या आपस में रिलेशन है? जैसे कि हम जानते हैं मीडिया और ह्यूमन राइट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। आर्टिकल 19(1)(a) में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 21 से हम कनेक्ट कर सकते हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टीज एंड अदर्स बेसिक राइट्स विच आर प्रोवाइडेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो और मीडिया कैसे ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट कर सकती है, ये भी जानते हैं। जैसे कि बताया गया, प्रेस freedom has become fundamental to political and social discourse in today's free society. The media has become the new public educator, enabling widespread access to both official and informal education, especially in the developing countries. The media can serve as a tool for assessing effort to advance the economic and social justice if it accurately reports the facts and refrain from the slanting and censoring or erasing expression of opinion. When advocating for economic and social justice, the media often refers to little as example of how many laws, program, and policies are flawed as yet need attention because of media coverage. There are times when newspaper article is enough to operate as writ petition in of itself. कभी कभी मीडिया का रोल भी ऐसा हो जाता है कि कोई लॉ अगर क्रिटिसाइज करना है तो मीडिया उसे क्रिटिसाइज भी करती है, और अगर उसमें कुछ कमी है वो भी बताती है। जैसे कि सीए के टाइम में भी न्यूज में काफी था, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो उसे भी ठीक किया जा सकता है मीडिया के द्वारा। मीडिया लोगों तक अपनी बात पहुंचाती है, मीडिया का उस लॉ के प्रति और गवर्नमेंट पॉलिसी के प्रति समर्थन है या विरोध है, वो सब मीडिया के थ्रू लोगों से निकलता है। तो ह्यूमन राइट्स के कनेक्शन मीडिया से इस तरह हो जा रहा है कि अगर कोई भी राइट्स वायलेट होता है गवर्नमेंट से, उसकी लॉ मेकिंग प्रोसेस में, उसकी पॉलिसीज में, तो मीडिया वहां पे है लोगों की आवाज उठाने के लिए, और मीडिया से भी पता चलता है कि लोगों की क्या सोच है। तो मीडिया को बहुत बड़ा रोल होता है
किसी भी ह्यूमन राइट्स को का प्रोटेक्शन करने में, किसी भी तरह की ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। बट मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और उस अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस चेक एंड बैलेंस भी रखना चाहिए कि हाँ अपना खुद में भी कुछ ना कुछ सेंसरिंग या फिर एक बार स्क्रूटनी करनी चाहिए, एडिटिंग करनी चाहिए और रेगुलेटरी मटेरियल और रेगुलेटरी अथॉरिटी वहाँ पे होनी चाहिए जो एक बार चेक कर सके, जिसमें कि कुछ भी जो भी बाहर आए, जो भी पब्लिश हो, फेयर होना चाहिए। तो the media has responsibility to provide the audience with essential checks and balance to advance the human rights. To the extent that human rights abuses are being documented, it is responsibility of media to disclose the fact to public to preserve a robust legal framework for impartial journalism. India's government has guaranteed press freedom via amendment to country's constitution while also protecting India's sovereignty, nationality and moral idea. That means कि right to have media को, but वो 19 क्लॉज 2 के अंदर देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, उसका ध्यान रखते ही वो पब्लिश कर सकती है मीडिया। और जैसे कि ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन में कई बार मीडिया का बहुत ही अहम रोल रहा है। अब हाउ मीडिया प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट इश्यूज। सो आर्टिकल 19 ऑफ यूएन UDHR रीड्स, क्या था उसमें? एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek the receive and impart information and ideas through any media, regardless of frontiers. States still have power to decide what government information should be public or protected. But it is widely understood that freedom of expression and freedom of speech are entwined with फ्री मीडिया और प्रेस। तो आर्टिकल 19 में बेसिकली यही बताया गया है कि सभी को, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है, सेम कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही UDHR के आर्टिकल 19 में भी राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन है। और साथ ही साथ उसके साथ रिस्ट्रिक्शन भी भाई कि स्टेट की इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को इंडेंजर में नहीं डाल सकते हैं, उसके साथ ही आप जो है अपना राइट एंजॉय कर सकते हैं। सो एक्सेस टू मीडिया इज अ ह्यूमन राइट, बट फ्री मीडिया इज एसेंशियल टू ह्यूमन राइट्स because without information people won't know what's going on locally, nationally and internationally. तो फ्री मीडिया भी होना चाहिए। अगर अपना विचारों को, अपने बातों को सही तरीके से सामने नहीं ला पा रहे हैं, अगर उसमें कुछ इन्फ्लुएंस है किसी चीज का, तो मीडिया सही रोल अपना नहीं अदा कर पा रही है। मीडिया तभी सही रोल अदा कर पाएगी जबकि वो फ्री एंड फेयर हो। और ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन में कई बार हमने देखा है, जैसे कि एक बहुत ही फेमस केस था इन राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज 1 एंड ए दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें कि कोर्ट ने बोला था कि क्या जो मीडिया का राइट है, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और साथ ही साथ किसी इंडिविजुअल का राइट टू प्राइवेसी, इन दोनों में से किसको महत्व देना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने एकदम ऐसा जजमेंट पास किया था कि दोनों में ये हार्मनी होना चाहिए। अगर ऐसे तो ये राइट है हमारे मीडिया को कि वो न्यूज़ पब्लिक को सर्कुलेट करें, बट ये भी दिमाग में रखना चाहिए ये तो उनका एब्सोल्यूट राइट
कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है, वहां पे रिस्ट्रिक्शन होती है। तो प्रेस को तो राइट है, बट ये चीज लिमिट फिक्स होनी चाहिए कि अगर उस लिमिट को क्रॉस करेंगे, प्राइवेसी में इंटरफेयर करेंगे इंडिविजुअल की, तो डेफेमेशन का सूट भी जरूर फाइल होगा। तो इस कोर्ट में इस केस में द हाईएस्ट कोर्ट इन high means Supreme Court ruled that the journalist had a right to speak freely about the participation of public people in political and social problem and events. However, in terms of their personal lives, democratic way of life outlined in Constitution necessitates a correct balance of press freedom and right to privacy and right to be free from defamation. मीनिंग बाय क्या कि दोनों में ही इन राइट्स में आपस में हार्मनी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर ये अपना प्रेस अपना राइट एंजॉय कर रहा है तो साथ ही साथ इंडिविजुअल के राइट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हम इंक्रोचमेंट कर देंगे इंडिविजुअल राइट में, राइट टू प्राइवेसी में हम उनके हनन नहीं कर सकते, अपना राइट एक्सरसाइज करें, साथ ही साथ दूसरे का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें हार्मोनियस अप्रोच कोर्ट ने की थी। उसके बाद ह्यूमन राइट्स के कुछ इश्यूज थे जो मीडिया की वजह से काफी लाइमलाइट में आए थे और काफी हेल्पफुल हुआ था, जैसे कि चकमा रिफ्यूजीज जो कि ईस्ट पाकिस्तान से भागे हुए थे और उनको यहाँ पे अरुणाचल में शरण दी गई थी, रिफ्यूजी स्टेटस दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि आर्टिकल 21 में उन्हें बोला गया था यहाँ पे सिटीजनशिप देने को, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब नो पर्सन वर्ड यूज हुआ है तो अप्लाई होता है सभी लोगों पे, ना कि किसी पर्टिकुलर सिटीजन पे। तो इसी आर्टिकल को इंटरप्रेट करते हुए चकमा रिफ्यूजी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनका प्रोटेक्शन और ये राइट ये एक्सरसाइज कर सकते हैं ये रिफ्यूजीज। और साथ ही साथ कश्मीर की सिचुएशन में भी ह्यूमन राइट्स का कैसे प्रोटेक्शन किया जाए, ये बात भी मीडिया के थ्रू बाहर आई थी। दोनों ही साइड से रोहिंग्या केस जैसे कि अभी लेटेस्ट में था, मीडिया में अगर हम लोग मीडिया ना होता तो हम लोग तक न्यूज नहीं आती। तो ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन में मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने इस तरह की न्यूज पब्लिश करते हैं कि कहाँ भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तभी अपने ह्यूमन राइट कमीशन एक्टिव होते हैं, अथॉरिटीज एक्टिव होती हैं और साथ ही साथ एनजीओज उनको पता चलता है तो वो स्टेप लेती है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए, स्टेप आगे लेके आगे प्रोसीडिंग करती हैं। और ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन में सबसे बड़ा योगदान इस तरह से मीडिया के थ्रू होता है। लास्ट में कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स और मीडिया दोनों ही, जहाँ की ह्यूमन राइट्स हमारा यूनिवर्सल राइट है, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते अपने से। और मीडिया भी हमारे लिए भी एक तरह से मीडिया भी हमारा बेसिक राइट्स हो गया है। क्यों? क्योंकि हमें भी आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए के अंदर ये जानने का अधिकार है कि ये बोलने का अधिकार है, कुछ भी अपना विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो आपस में प्रेस का और ह्यूमन राइट का बहुत ज्यादा गहरा रिलेशन है। ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन मीडिया के थ्रू किया जा सकता है और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन में। ह्यूमन राइट्स मीडिया, जैसे कि आप अलग अलग अभी भी काफी न्यूज़पेपर में केस पढ़ते ही होंगे कि कहाँ कहीं पे भी ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो मीडिया आगे बढ़ के उस चीज को छापती है और अलग कभी कभी कोर्ट सुमोटो भी ले लेते हैं कि कहीं पे कुछ किसी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस ले लेती है मैटर का। तो इस तरह से मीडिया का रोल हो जाता है, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन में बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि बट एक चीज और कि ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन में मीडिया का रोल तो है, बट मीडिया को भी फेयर होना चाहिए और फ्री और फेयर मीडिया ही
राइट्स के प्रोटेक्शन में आगे तक हेल्प कर सकती है. सो बोथ टू इंस्टीट्यूशन आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, एंड दोनों का ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमें राइट दिया गया है, और आप ह्यूमन राइट्स का भी और मीडिया का भी. तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के प्रोटेक्शन में ये हेल्पफुल रहते हैं. थैंक यू.